بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ویورز۔ آج کا بریف اوور ویو ہے موسٹ اویٹڈ اینڈ ہائیلی اینٹیسپیٹڈ فلم کھیل کھیل کے بارے میں۔ یہ فلم 19 نومبر کو سینماز میں ریلیز ہونے جا رہی ہے اور فلم کی کہانی بہت زبردست، اچھوتی اور نئی ہے۔ یہ فلم 1971 کی جنگ کے پس منظر میں بنائی گئی ہے، جس پر آج تک کبھی کوئی مووی نہیں بنی، اور اس جنگ کے نتیجے میں بنگلہ دیش ایک الگ ملک بن کر ابھرا اور ایسٹ پاکستان ختم ہو گیا۔ اس فلم میں 16 دسمبر 1971 میں ہونے والے سانحے سے لے کر آج تک کے بنگلہ دیش اور پاکستان کے حالات بتائے گئے ہیں۔ اس موضوع پر کچھ ڈرامے تو بن چکے ہیں، لیکن فلم آج تک نہیں بنی ہے جو کہ اس طرح کے پولیٹیکل ایسپیکٹ کو ہٹ کرے جس طرح کے اس مووی نے ہٹ کیا ہے۔ مووی کو پروڈیوس کیا ہے فضا مرزا نے اور نبیل قریشی نے اس کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ مین لیڈ میں سجل علی، شہرزار منور اور بلال عباس شامل ہیں۔ 16 دسمبر 1971 کا سانحہ ایک ایسا سانحہ ہے جس کے زخموں سے بہنے والا خون آج تک جاری ہے۔ یہی وہ سانحہ ہے جس کے بعد فیض احمد فیض جب بنگلہ دیش گئے تھے، انہوں نے اپنی مشہور نظم کہی، ہم کے ٹھہرے اجنبی کئی مداراتوں کے بعد، ہم کے ٹھہرے اجنبی کئی مداراتوں کے بعد، پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد، کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد۔ دا فال آف ڈھاکہ یعنی کہ سقوط ڈھاکہ ایک ایسا سانحہ جس کے زخموں سے آج بھی لہو بہتا ہے۔ وہ پاکستانی جو آج بھی بنگلہ دیش میں محصور ہیں، جن کی واپسی کے لیے کسی حکومت نے آج تک کوشش ہی نہیں کی۔ وہ خود کو پاکستانی کہتے ہیں، بنگلہ دیشی ان کو بنگلہ دیشی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس مووی میں اس چیز کو بہت ہی خوبصورتی سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو گورنمنٹ لیول پر تو کیا، ایون سفارتی لیول پر بھی اس طریقے سے نہیں ڈیل کیا گیا۔ ان لوگوں کی معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے اور نہ ہی ان کو پاکستان کے شہری کی حیثیت سے واپس آنے کے حقوق دیے گئے ہیں۔ فلم کا مرکزی کردار سجل علی ہیں، جو کہ ایک بہت ہی باہمت اور جرأت مند لڑکی ہیں، اور ان کے دادا 1971 کی جنگ میں بنگلہ دیش میں لاپتہ ہو گئے تھے۔ وہ ان کی تلاش میں بنگلہ دیش جانا چاہتی ہیں، جبکہ ان کے گھر والے ان کو نہیں جانے دیتے۔ فلم کے آغاز میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، جس میں سجل علی، بلال عباس اور ان کے بہت سارے دوست شامل ہیں، دکھائے جاتے ہیں۔ ان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ بنگلہ دیش جا کر ساک کنٹریز کے ریپریزنٹیٹیوز کے ساتھ مل کر اپنا ڈرامہ پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سجل علی یہ سجیشن دیتی ہیں کہ وہ سقوط ڈھاکہ کے بارے میں ڈرامہ بنائیں گی، تاکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان آج تک جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں ان کا ازالہ ہو سکے، اور بنگلہ دیش کے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ پاکستان دل سے بنگلہ دیش کو تسلیم کر چکا ہے اور ہم بنگلہ دیش کو اپنا دشمن نہیں بلکہ دوست اور بھائی سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں۔ اس ڈرامے کا موضوع اتنا کنٹروورشل تھا کہ پرنسپل تک، جو کہ مرینا خان ہیں، وہ خود اسٹوڈنٹس کے پاس آ کر اتنی ہائپر ہوتی ہیں اور انہیں کہتی ہیں کہ یہ میرے ادارے کی عزت کا سوال ہے، اور ایسے کسی بھی ٹاپک پر کوئی بھی ڈرامہ لے جا کر آپ اس کانفرنس کے ایجنڈا میں پریزنٹ نہیں کر سکتے۔ یہاں سجل علی کے دوست بھی اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اس شرمناک شکست کے بارے میں جا کر تم وہاں بات کرو گی اور اس پر ڈرامہ بناؤ گی جس کو ہم چھپاتے پھرتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ آج بھی اس سانحے کی وجہ سے ہم شرمندہ ہیں۔ جس وقت ہماری فوج نے وہاں مجبوراً ہتھیار ڈالے، آج تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ وہ ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ درست تھا یا نہیں۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والی بحث ہے۔ یہاں
जहां सजल अली डर जाएगी और बिलाखिर सबको इस बात पर राजी करने में कामयाब हो जाएगी कि ढाका के मौजू पर ड्रामा बनाएंगे। बहुत मुश्किल से वो अपने घर वालों से इजाज़त लेकर बिलाखिर ढाका पहुंच जाएगी, जहां अब नफरत का असल बीज बोने वाले भी मौजूद होंगे, यानी कि इंडियन स्टूडेंट्स भी। और मौका बेमौका वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को टॉन्ट करेंगे। एक इंडियन ऑफिसर भी दिखाया जाता है जो ग्रीन पासपोर्ट को देखते ही सज्जल अली को कहता है कि तुम तो दहशतगर्द हो, यानी कि इस किस्म का बायसिस दिखाया जाएगा, इन लोगों का प्रेजुडिस दिखाया जाएगा जिस हकारत से वो पाकिस्तानियों के बारे में बात करते हैं। यानी कि असल नफरत का बीज पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के दरमियान किसने बोया और कौन आज तक इसकी आबियारी कर रहा है, ये हाईलाइट किया जाएगा इस फिल्म के अंदर। यहाँ कंपटीशन के दौरान एक सॉन्ग भी होगा जो कि फिल्म का टाइटल सॉन्ग है। बहुत खूबसूरती से फिल्म का सारा मकसद बयान किया गया है। और एक सिख लड़का भी है जो ये बताता है कि हमें जो करतारपुरा कॉरिडोर मिला है वही पाकिस्तानियों के खुले दिल का बहुत बड़ा सबूत है। जबकि वो हमारे लिए ये सब कुछ कर सकते हैं तो अपने मुसलमान भाइयों के लिए क्या क्या नहीं करेंगे। सजल अली एक स्लम एरिया में अपने दादा को ढूंढने जाती है और ऐसा लगता है कि वो बुजुर्ग शहरी जिसे दिखाया जाता है कहते हुए कि आपको हमारा ढाका कैसा लगा, वही उसके दादा होंगे। यानी शायद उनकी ज़हनी हालत ऐसी नहीं होगी कि वो अपने माजी को पूरी तरतीब के साथ याद रख सकें। और ऐसा लगता है कि यही करैक्टर जिसके बुढ़ापे से सजल अली मिलती है जवानी में शहरयार मुनव्वर का किरदार अदा करेगा। और वो अपनी यादाश्तों में 1971 का वो सानिया दिखाएगा, वो कर्ब और अजियत जिसके साथ वो ज़मीन पर गिरता है जहाँ से फिल्म का प्रोमो स्टार्ट होता है, उसके चेहरे पर देखी जा सकती है कि एक सिपाही जब तन मन धन की बाजी लगाकर लड़ रहा होता है तो वो अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका होता है और उस वक्त उसको पता चलता है कि उसकी फौज ने हथियार डाल दिए हैं और वो जंग हार चुके हैं। जंग हारने से ज़्यादा बड़ा सानिया हार मान लेना होता है। वो ज़िल्लत, वो शर्मिंदगी, वो बेबसी उसके चेहरे पर देखी जा सकती है। फिर उनके हाथ बांधकर उनको इकट्ठा बिठा दिया जाता है और गोलियों की बौछार उनके साथियों पर कर दी जाती है। पता नहीं किस तरह वो वहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसकी अजियत वो सारी ज़िंदगी अपने अंदर महसूस करता है। ये एक बहुत ही तकलीफ दे दास्तान है। ये ऐसे ज़ख्म हैं जो कभी नहीं भर सकते। जो मर गए उनकी तो यादें बन गईं, लेकिन जो जिंदा बच गए वो कोलेट्रल डैमेज हैं। वो बदतमीज़ लड़का जो इंडियन ग्रुप को लीड कर रहा है वो सजल अली को होटल रूम से मैसेज करके किसी तरह बाहर बुलाएगा और किडनैप कर लेगा। फिर बिलाल अब्बास को जाकर जताएगा कि वो पाकिस्तानी हीरो जिसको हमने मिस्टर इंडिया की तरह गायब कर दिया है कहाँ। यहाँ पर बिलाल अब्बास का मीटर घूमेगा और वो और उसके साथी मिलकर सजल अली की तलाश में लग जाएंगे। और ये सब कुछ वो इंडियंस इसलिए करेंगे कि सजल अली अपना ड्रामा प्रेजेंट ना कर सके, लेकिन बिलाल और उसके साथी सजल अली को ड्रामा ऑन स्टेज होने से पहले ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे। सजल अली किडनैपिंग के दौरान उस इंडियन लड़के और उसके गिरोह के बारे में कुछ ऐसे राज जानने में कामयाब हो जाएगी जिनका ताना बाना पाकिस्तान बलूचिस्तान में आकर मिलता होगा। असल में उन लोगों का ताल्लुक दहशतगर्दों के साथ होगा और वो बाज़ाहिर स्टूडेंट्स के कवर में वहाँ गए होंगे बांग्लादेश में, और वहाँ भी वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस होंगे। सजल और उसके साथी बहुत ही कामयाब ड्रामा प्रेजेंट करेंगे जिसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाएगा और होपफुली वो बेस्ट ड्रामा ऑफ द फेस्टिवल होगा। और उसकी एंडिंग पर तकरीबन पूरा हाल आंसुओं से रो रहा होता है। तो ये ड्रामा काफ़ी गलतफहमियाँ जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान है, बांग्लादेश की आइडेंटिफिकेशन को लेकर उनको क्लियर करेगा। और जब स्टूडेंट कॉन्वॉय वापस आता है तो सज्जल इकट्ठे किए हुए सबूत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के बारे में वो होपफुली पाक फौज के हवाले करेगी। और फिर सारे स्टूडेंट्स हमें बलूचिस्तान में खड़े नज़र आते हैं और उस दहशतगर्द की गिरफ्तारी की खबर भी चलती हुई दिखाई देती है।
यहाँ एक लड़का जिसके बाल थोड़े लंबे और एक डिफरेंट लुक और यूनिक लग रहा है, बलूचिस्तान से बिलोंग करता हुआ करेक्टर दिखाया गया है। और वो लड़का इस बात का तहिया करता हुआ नज़र आता है कि हम अपनी ज़मीन को उन जालिमों के हवाले नहीं करने देंगे और ना ही उनकी भेंट चढ़ने देंगे। यहाँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है हमारी यूथ की तरफ से कि हम किस हद तक मुत्तहिद हैं। जो प्रोपेगेंडा इंडिया हर वक्त फैलाता है कि बलूचिस्तान अलहदगी पसंद है और वो अलहदा होना चाहते हैं, बलूचिस्तान का हाल भी बांग्लादेश वाला होगा, तो इसमें वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। फिल्म बहुत ही मकसदियत से भरपूर है। बेहतरीन थीम को बेहतरीन वे में यहाँ पेश किया गया है। गेस्ट अपीयरेंस दी है अली जफर और जावेद शेख ने। जावेद शेख किसी हाई लेवल ऑफिसर का किरदार अदा कर रहे हैं और अली जफर मोस्ट प्रोबेबली एक सेलिब्रिटी का रोल प्ले कर रहे हैं। ये दोनों वेटरन किस्म के एक्टर्स हैं जो कि फिल्म में यूजुअली प्रोमो चलाने के लिए या फिल्म की हाइप क्रिएट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इनकी फैन फॉल भी बड़ी होती है। मेन लीड्स बिलाल और सजल अली बेहतरीन एक्टर हैं और फिल्म में भी इन्होंने एक्टिंग ज़बरदस्त की है। फिल्म अपनी एक्सपेक्टेशंस को मीट करेगी ऐसा ही लग रहा है। कोविड-19 के बाद ये पहली फिल्म है जो सिनेमा में रिलीज़ के लिए जा रही है। बहुत अरसे के बाद सिनेमा खुले हैं। आप सबसे गुजारिश है कि इस फिल्म को ज़रूर देखें और फिर राय बख्शें। इस फिल्म को पसंद करें क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट्स शामिल हैं, जैसे कि इसका थीम ही बहुत बड़ा है और इस थीम को लेकर इसको प्रमोट करें, जो कि है गलती जिससे भी हुई है आओ दोनों माफ़ी मांग लें और नफ़रत को ख़त्म कर दें। तो व्यूअर्स, क्यों ना हम सब भी मिलकर एक हो जाएं और इस नफ़रत को ख़त्म कर दें और इस थीम को आगे बढ़ाएं। अब तक के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।